तो चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां इस समय सीएम भूपेश बघेल लाइव हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव है जिसमें अनेक देशों के लोग आकर पार्टिसिपेट करते हैं और इस पूरे कार्यक्रम में ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये छत्तीसगढ़ का जो रिच कल्चरल ट्रेडिशन है, ट्राइबल कल्चर है, उसके ऊपर आधारित है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि जो भी हम प्रश्न करें वो इसके अक्रॉस करें। इस कार्यक्रम को बताने के लिए, इसकी रूपरेखा के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा एमडी टूरिज्म अनिल साहू सर को कि एक बार संक्षिप्त में इस कार्यक्रम का ब्रीफ आपको दे दें। तदुपरांत हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे आपसे संवाद करने के लिए, आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए। श्री अनिल साहू सर। Honorable Chief Minister of our state, respected Bhupesh Baghel ji, Honorable Minister Urban Welfare, Shri Dahlia Saab, esteemed guests from national press, electronic media, and invitees from the capital city of Delhi. First of all, let me welcome you all to this August press conference that's being held here at Kiranath Art Museum. As you know, our state Chhattisgarh, it has been a pioneer state in all matters related to tribal welfare. Ours is a predominantly tribal state, and we take pride in our tribal culture, our tribal people, our forests, our natural landscape, our rivers, tribal culture, tribal music, tribal cuisine, and the dance forms, the tribal, say, entertainment aspect. So you'll be glad to know that Chhattisgarh has been the first state in our country to hold a national level tribal dance festival way back in the year 2019. And since then, it has been two more editions. Second edition was in 2021, and the third edition is going to be held this year in the month of November, from 1st to 3rd of November. In the first edition, almost 24 states and union territories, 6 countries were represented. Around 1,500 artists had come there to perform. Second edition also saw 26 states and union territories and 7 countries, and almost 1,300 plus artists from all over have participated. Now the third edition is going to be held in the month of November, from 1st to 3rd of November, and we expect almost the similar number of states who have consented to participate, and around 7 countries, European, say a country from say New Zealand also is participating, Russia, and some other. Support the industry in terms of, because in the next slides I'm not going to read all the lines. We support in terms of cheaper land, rebate in development fees, green industrialization. If you set up effluent treatment plant or a zero liquid discharge, we support that. We also give rebate in power. We give exemption in electricity duty, and then on the patenting we support. R&D also we support, and for many other sectors like garments, we support in terms of training, skill development, and also some subsidy in employment support. So these are their components. Then new areas which are coming up in MP again is in various times, and if you look at the size of the land, it is 31,000 acres in Pithampur, almost 17,000 acres in Devas area, Ratlam about 10,000 acres, which is along the new Delhi-Mumbai corridor, and then Gwalior region about 20,000 acres. So this highlight I will skip because we have limited time and we want to hear our honorable CM, and also we will get some ideas from you also. So this I am not reading, I have briefly explained. Similarly for all these sectors we have a specific component. We will email to all of you, it is available on the website also. So government we have very attractive policy, so this you can have a look at the policy component. And this is up to a limit of 200% of उपलब्ध कराना। उसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, संस्कृति है, उसे भी उभारने का काम, उसे दुनिया के मानचित्र में लाने के लिए लगातार हमारी सरकार कोशिश कर रही है। तीसरी बार नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन
और न केवल नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन बल्कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय अनेक देशों के लोग, पिछले समय तो 6 देश के लोग आए थे, इस समय 7 देश से अधिक आने की सहमति दी है। देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 1400 कलाकार आएंगे, 100 कलाकार विदेशी कलाकार 100 यहाँ आएंगे। और उसके साथ साथ जो ट्राइबल कल्चर है पूरी दुनिया भर में और हिंदुस्तान के विभिन्न हमारे जो ट्राइबल हैं उसके कल्चर है, रीति रिवाज है, उन सब का वहाँ प्रदर्शन भी होगा, साथ ही गोष्ठियाँ भी होगी और उसके विकास और उत्थान की चर्चा भी होगी। तो मैं इस अवसर पर आप सबको 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस भी है, उसमें आप सबको आमंत्रित भी करता हूं और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आनंद भी आप लेंगे, ये आप लोगों को निमंत्रण देते हुए मैं आप सबसे चाहूँगा कोई सवाल आपकी तरफ से हो तो साधारण आमंत्रित। बैठ के कार्डलेस आएगा, ये तो सबसे यही ठीक रहेगा क्या? ये यहाँ पे सब माइक, कोई बात नहीं, चलो रहने दो। जी सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आदिवासी खासतौर पे ट्राइबल्स पे एक आत्मविश्वास जगाने का काम जिस तरीके से आपकी सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़िया प्राउड को जिस तरीके से पैदा करने की आपने पूरे छत्तीसगढ़ में एक कोशिश की है और खासतौर पे इस प्रोग्राम का जो थीम आपने दिया है, क्योंकि आप एक पहचान पूरे दुनिया भर के कलाकारों को आप बुला रहे हैं, आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती और भी आपके सामने होगी कि किस तरीके से इसको और बड़ा करना है, तो फ्यूचर प्लान इसका क्या होगा आने वाले वक्त? छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 41 जनजातियां हैं, 32% उनकी आबादी है, 44% जंगल है और लगातार वहाँ के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। और आपको ये भी पता होगा कि नक्सलवाद हमारे यहाँ बहुत अधिक रहा है, लगभग आधा भूभाग नक्सलियों के से प्रभावित रहा है। और ऐसे समय में जब हम लोगों ने राज्य सरकार की बागडोर संभाली, उस समय हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस समस्या का निदान क्या है। तो उस मामले में हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया कि 3 सूत्र को लेकर चले, विश्वास, विकास और सुरक्षा। विश्वास जीतने के लिए जहां लोहांडीगुड़ा की जमीन हमने वापस कराई जो उद्योग के लिए लिया गया था, और भूमि अधिग्रहण जो बिल पारित हुआ 2013 में, उसके बाद देश का दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि आदिवासी से लोग तो जमीन लेते रहे या छीनते रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 4200 एकड़ जमीन हम लोगों ने वापस कराई। फॉरेस्ट एक्ट उधर पट्टा दिया। लघु उपज हमारे यहाँ केवल 7 प्रकार की खरीदी होती थी, अब 65 प्रकार के लघु उपज न केवल खरीदी की जाती है बल्कि इसको वैल्यू एडिशन कराया जाता है। ऋण माफी से लेके उनके मिलेट्स जितने कोदो, कुटकी, रागी, इनकी भी खरीदी की, समर्थन मूल्य में खरीदी करने की व्यवस्था की। तो आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की कोशिश हमारी सरकार के द्वारा। उसी प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। एक विश्वास जगह और विश्वास हुआ और तब से अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 260 स्कूलें बंद थी, उसको फिर से हम लोगों ने शुरू किया। तो एक विश्वास बढ़ा। उसके साथ साथ जो वहाँ की संस्कृति है, उनकी जो गोकुल पूरा विश्व प्रसिद्ध रहा, बस्तर का आप जानते हैं गोकुल के बारे में, उसके निर्माण करने के साथ साथ वहाँ की जो देवगुड़ी उसकी परंपराएं हैं उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसके विकसित करने के लिए हम लोगों ने काम किया। एक विश्वास जीतने के काम हम लोगों ने उसकी संस्कृति को न केवल बचाने के लिए बल्कि उनकी जो भाषाएं हैं, चाहे आप सरगुजा सब चले, इससे पिछली सरकार की दृष्टिकोण ही यही थी कि जितने आदिवासी वो नक्सली हैं या नक्सली समर्थक हैं, ये उनकी दृष्टि रही है। जबकि हमारी दृष्टि ये है कि नक्सली हैं, इसे कोई इनकार नहीं, लेकिन सारे आदिवासी नहीं हैं। मजबूरी में किसी की कनपट्टी में आप पिस्तौल टिका के जो बात कहलवाना चाहें, वो तो आदिवासी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो वहां उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो सक्षम लोग हैं उसकी कनपट्टी में कोई बात करे तो किसी पेपर में आप दस्तखत करा लीजिएगा, तो उस स्थिति को समझिएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वहां जितने भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जैसे स्कूल है,
आंगनबाड़ी केंद्र है, पीडीएस साफ है, बिजली है, पानी है, ये उसकी डिमांड रही है। सबसे पहले जहाँ हमको कैंप खोलना है वहाँ से पहले ये काम, उसके बाद फिर लोगों ने खुद डिमांड की कि अब हमारे यहाँ सड़क बनना चाहिए। तो पहले और अब में अंतर ये है कि पहले सड़क बनती थी तो पैरामीटर फोर्स के जाने के लिए बनती थी, लोगों की दृष्टि है वो इस प्रकार की थी, और आज आदिवासियों की दृष्टि बदली है। अब लोग बोलते हैं ये सड़क बन रही वो हमारे लिए बन रही, क्योंकि उस समय वो पैदल ही चलते थे। जब हमने ऋण माफी किया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, लघु उपज को समर्थन मिलने और न केवल खरीदी बल्कि वैल्यू एडिशन किया, आदिवासियों की जेब में पैसा पहुंचा। और आज केवल दो डिमांड करते हैं, सड़क तो मांगते ही, वो दो डिमांड बस्तर में चाहे सरगुजा में दो डिमांड करते हैं। एक तो हमारे यहाँ बैंक खुली, बैंक की शाखा खुली, और दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोली। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाना चाहते हैं, अपनी भाषा तो सिखाना ही चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भी सीखना चाहते हैं ताकि देश और दुनिया को जान सके, समझ सके। और साथ ही पहले बैंक के चपरासी भी गांव में आ जाए तो लोग भागते थे, अब गांव में लोग बैंक मांग रहे हैं क्योंकि अब ट्राइबल के पास पैसा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ ये इधर दे दी। आपने आर्थिक स्थिति की बात की जी, आर्थिक स्थिति सुधारने की बात जी, और छत्तीसगढ़ मेटल क्राफ्ट दुनिया में अनोखा है, उसको प्रमोट करने के लिए और वहाँ की जो बाकी चीजें हैं कोंडागांव की, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए कोंडागांव में हमने उसके लिए अलग वर्कशॉप ही बनाया है, वो बाजार ही अलग बना दिया है। और उसके साथ साथ प्रत्येक जिला में अभी तक के 28 जिलों में, अब तो नए जिले और बन गए, तो पुराने जो 28 जिले हैं सब जगह हमने सी मार्ट खोला है जिला स्तर पे, और संभाग स्तर पे सी मार्ट खोला। सी मतलब छत्तीसगढ़ मार्ट, जिस प्रकार से यहाँ बड़े बड़े माल खुले हुए हैं, तो हमने जिला स्तर पे, जिससे संजीवनी जो हमारे वन विभाग के द्वारा बनाया जाता है, हमारे आदिवासी जो क्राफ्ट है, हमारे जो कोसा के कपड़े बनाने वाले बुनकर लोग हैं, तो जितने छत्तीसगढ़ में जो चीज़ उत्पादन हो रहा है, हमारे स्व सहायता समूह की जो बहनें जो उत्पादन कर रही हैं, वो सारे जितने उत्पादन हैं अब उसको हम लोग एक जगह एकत्रित किए। पहले 150 प्रकार की सामग्री बनती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अब 800 प्रकार की सामग्री बन रही है। छत्तीसगढ़ के आप संभाग स्तर के आप मार्ट में जाएंगे तो 1100 प्रकार की वस्तुएं आपको मिलेगी जो जैविक। तो वो बेचने की व्यवस्था, मतलब न केवल आपके डोगरा आर्ट जो बस्तर या कोंडागांव में मिलता है उसे प्रमोट करने के लिए, बल्कि वहाँ के जो उत्पाद है उसके विक्रय करने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप ये जो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल इंटरनेशनल इसको बना रहे हैं, ये 3 दिन का अभी जो आप किया है, इसको बढ़ाने के लिए ऊपर कोई विचार है ताकि उस वक्त जैसे यहाँ पर फरीदाबाद में लगता है सूरज कुंभ मेला, इस टाइप का मेला करके उसको और बड़ा किया जा सके, उस पर कोई करने का विचार है आपका? पिछले समय भी 3 दिन के किए थे, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने मांग की तो 5 दिन तक हम लोग ऐसे चलाए थे। तो 3 दिन का हम लोग आयोजन तो करते हैं, लेकिन डिमांड आती है तो और बढ़ा देते हैं। आप इधर, अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था सर, ये जो हमारा इंटरनेशनल हो रहा है पूरा मिला, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि बाहर के ट्राइबल्स आकर के छत्तीसगढ़ को परफॉर्म कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ट्राइबल कल्चर विदेश में जाकर के वहाँ परफॉर्म करे, गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ शुरुआतें की हैं, लेकिन उसे और ज़्यादा बड़ा मंच देने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने तो मंच दिया, पूरी दुनिया को मंच दिया है, देश को मंच दिया, दुनिया को मंच दिया। पहली बार पूरे दुनिया में ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। मैं समझता हूँ किसी देश में आयोजन नहीं होता, बल्कि वहाँ के कलाकार आते हैं, ये कहते हैं कि हमारे देश में भी इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए, हम लोग मांग करेंगे। यदि उस प्रकार से वहाँ आयोजन हो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कलाकार जाएंगे। वैसे भी बहुत सारे कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ के विदेशों में जाके न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश का प्रतिनिधित्व किए हैं। एक सर इससे जुड़ा सवाल नहीं है, अगर अनुमति हो तो मैं पूछूं। अब वो फिर आखिरी में पूछ लीजिएगा, अभी दूसरे को मौका दीजिए जो इससे जुड़े हुए सवाल। हाट बाजार के जरिए सरकार कितना कामयाब हुई आदिवासियों का विश्वास जीतने में? देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि हॉस्पिटल तो बने हैं, जिला स्तर पे बने हैं, ब्लॉक स्तर पे बने हैं, PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं। लेकिन गांव में और खासकर ट्राइबल में वो हॉस्पिटल इलाज कराने नहीं जाते। बहुत जब मर्ज बढ़ जाता है तभी हो जाते हैं, जब अब वो स्थिति नहीं संभल रही तभी जाते हैं। लेकिन हाट बाजार एक ऐसी जगह है
जहाँ सब लोग जाते ही हैं, सप्ताह में एक बार बाजार जाना ही है, तो हम लोगों ने फिर हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की और पूरे प्रदेश भर के जितने हाट बाजार हैं, जो प्रमुख बाजार हैं, उसको चिन्हित किए और किस किस दिन लगता है उसको चिन्हित लिपिबद्ध किए और उसके बाद उन बाज़ारों में 12-1 बजे के बाद, बस्तर में थोड़ा सा बाज़ार भी जल्दी भरता है, दिन में भरता है, शाम को नहीं भरता, तो दिन में ही गाड़ी चली जाती है और वहाँ इलाज करना है। लगभग अभी तक के ग्रामीण हाट बाजार क्लिनिक योजना और शहरी स्वास्थ्य योजना दोनों मिला के लगभग 45 लाख लोग अभी तक के लाभ ले चुके हैं। सर, हमने देखा है आपने कई योजनाएं बनाई है, खासतौर से जो गोबर की योजना है वो काफ़ी फेमस हुई है आपकी और पिछले दिनों काफ़ी खबर में आई थी। तो जो आपने आदिवासियों से जोड़ी है, जो कनेक्टिविटी जोड़ी है और खासतौर से जो उनको रोजगार से जुड़ा है, इसके पीछे एक बड़ी सोच क्या रही है और दूसरा ये कि क्या उसका आर्थिक स्वावलंबन जो बढ़ाया गया है आदिवासियों का, उसका क्या आप आगे आने वाले दिनों में बदलाव देखते हैं, इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, ये देश है एक युग था जो पशुपालन युग था और पशुपालन युग से हम बाहर हुए भी नहीं हैं, लेकिन जब यांत्रिकी बहुत सारे आ गए, चाहे हार्वेस्टर आए, ट्रैक्टर आए, जितने भी कृषि यंत्र आए, तो उसके बाद बैलों के या भैंसे की आवश्यकता में कमी आई और उसके कारण से छुट्टा मवेशी की बड़ी समस्या हो गई और प्रत्येक प्रदेश में स्थिति है कि मवेशी खुले में हैं और उसको कहीं आवारा पशु कहते हैं, कभी अन्ना पशु कहते हैं, कभी कुछ और नाम से पुकारते हैं। ये इस समस्या से हम लोग भी अलग नहीं थे, हम लोग भी इस समस्या से जूझ रहे थे और इस ऐसे समय में हम लोगों ने निर्णय किया कि भाई अध्ययन करने से पता चला जो दुधारू जानवर है उसको घर में रख लेते हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो, लेकिन जो दूध नहीं देने वाले जानवर है उसको खुला छोड़ देते हैं। लेकिन हमने देखा कि भाई गोबर तो सभी देते हैं, तो इसलिए गोबर खरीदने का निर्णय किया हमने और 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं। अब तो हमने 4 रुपये लीटर में गौमूत्र भी खरीदना शुरू किया है। तो इससे पूरा हमारे यहाँ 11,000 पंचायत है और लगभग 10,000 पंचायतों हमने गौठान स्वीकृत कर दिया। 9,500 गौठान हमारे बन भी गए हैं और 8,600 जो गौठान हैं वो वर्किंग में हैं। तो वहाँ गोबर खरीदी हो रही है और अभी तक के लगभग 80 लाख क्विंटल हम लोगों ने गोबर खरीद लिया है और उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और उसमें 19 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेत में पहुंचा दिया है। उससे अलग अलग स्टेज में फायदा हुआ। पहली बात तो गोबर खरीदने से जो डेयरी चला रहे हैं या गौ पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वो लाभान्वित हुए, उसके डेयरी पे बोझ कम हुआ, जो दुधारू जानवर उस पर लोड पड़ता था वो कम हो गया, नंबर 1। दूसरा, गांव में हमने जमीन आरक्षित की 5 से 10 एकड़, एक तो चारागाह के लिए और दूसरा गौठान के लिए, तो वो लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने शासकीय भूमि जो अतिक्रमण हो जाता था और दूसरे कब्जे में रहता था वो अब सुरक्षित हो गया। तीसरा, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अभी दीपावली के समय गोबर के दिया भी खूब प्रचलित हुआ। पिछले समय कुमार विश्वास जी गए थे कोई सम्मेलन में, हमने उसको प्रेजेंट किया तो अपने दीपावली के समय उन्होंने अपने घर में गोबर के दिया भी उन्होंने जलाया था। तो इस प्रकार से आज उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और दिया भी बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, गो कास्ट बना रहे हैं। तो इस प्रकार से लगभग 93,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और उस जमीन में वहीं बाड़ी सब्जी उत्पादन कर रहे हैं जो लैंडलेस लेबर है, तो वो लोग उनको जमीन हम दे दिए हैं तो सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसको मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैविक खेती की तरफ इसलिए बढ़ रहा है लोग, क्योंकि जितने भी रासायनिक खाद और दवाई के उपयोग हम लोग कर रहे हैं उसके कारण से जब अनाज है, फल है, सब्जी है, वो सब दूषित होते जा रहा है और इसके कारण से अनेक बीमारियां से मानव समाज जूझ रहा है। तो ऐसे समय में यदि बड़ी संख्या में हम लोग यदि जैविक खेती करेंगे और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हो सकता है छत्तीसगढ़ आपके जैविक राज्य के रूप में पहचान मिले, तो ये लाभ का ही काम है। और उसी में अब हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क
अभी प्रत्येक ब्लॉक में 2 हमने स्वीकृत किया, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर, ताकि पढ़े लिखे जो गांव में जो लड़के हैं, महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनको रोजगार करने का अवसर मिले। बाबा रामदेव कच्चा घानी के तेल बेचे, गांव में ही हमारे जब सरसों होता है, गांव में जब तिली उत्पादन होता है तो उसे तेल भी बना के बेच सकें, तो उत्पादन करने की व्यवस्था और विक्रय करने की व्यवस्था, ये हम लोग वहाँ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। आवारा पशु को अन्ना पशु से जोड़ दिया था, आवारा पशु को अन्ना पशु से जोड़ दिया, तो टारगेट कुछ और है या सिर्फ ना वो आवारा पशु को मैं अभी आपको बताऊं, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, तो वहाँ बुंदेलखंड में उसको अन्ना जानवर कहते हैं। हाँ, वो उस अन्ना से नहीं है, आप बुंदेलखंड में पता कर लें, वहाँ अन्ना जानवर कहते हैं, कहीं आवारा कहते हैं, कहीं अब वही गौ माता के नाम से वोट मांग लेते हैं। परसाई जी के व्यंग तो आपने सुना ही होगा, पूरी दुनिया